Okay, so we are going to understand today is the graphs which we are going to draw and the equations. So equations I have already told you that you don't have to remember, though I am going to write from a source, है ना? So you that those let's say equation will always be given. So I'm writing, let's say, those equations. So psi r theta phi can always written as psi r and psi theta phi. So this is the part of Schrodinger equation. ठीक है, अभी चल ही रहा है ये Schrodinger. Okay, so that is psi r psi theta phi. Let's say for 1s orbital, for 1s orbital. ठीक है, psi r value is nothing but 2 z by a naught to power 3 by 2 e to power minus sigma by 2, and this part is 1 upon 4 pi to power 1 by 2. ठीक है, where a naught is nothing but Bohr orbit and sigma is nothing but 2zr by n a naught. ठीक है, तो ये इसके टर्म्स में ये 4 है यहाँ पे. Now tell me one thing, in 1s orbital can you see any radial node? Can you see any radial node? Just check this option, right? This for radial node, that's it. For radial node, the psi r should be 0, but for 1s, ना, psi r cannot be 0, right? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और e की पावर -x, ये 0 हो नहीं सकता. ठीक है, so there is no possibility that psi r can be 0, hence no radial node. Now for angular node, what we can understand is, can this value can be 0? So no, right? There cannot be, let's say this value cannot be 0. So that's why, so psi theta phi cannot be 0. Hence no radial node, no angular node. So there is no radial node, no angular node. So hence for 1s there is no node, है ना. 1s के लिए क्या होगा, एक भी node नहीं होगा. When we are talking about the node, we are not considering infinite and nucleus, है ना. ये बात हम consider नहीं कर रहे हैं क्योंकि that is obvious. इसके अलावा बीच में कहाँ पे boundary condition लगाएंगे तो फिर 0 आएगा, that we are considering. So there is no radial node, no angular node, hence we can say no node is present. And we have seen this formula, the total number of nodes was n minus 1. And you can see that n value is 1 over here. So 1 minus 1 is 0. So that's why no node is present. है ना, वो फॉर्मूले को भी मैं रिलेट करता रहूंगा. ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट, किसी को भी? Okay, I am repeating again. Okay, so we know this psi r theta phi is psi r dot psi theta phi. So I have written both part according to the source. ठीक है, ये वैल्यू है. Now I can see कि ये वैल्यू में चाहे कुछ भी वैल्यू रख दो आप, राइट, आर की कोई वैल्यू लिख दो, ये सिग्मा मतलब आर है. this value cannot be 0, है ना. ये तो वैसे ही कांस्टेंट टर्म है और ये e की पावर -x cannot be 0, राइट. ठीक है,
सो यशवर्धन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, साई आर की वैल्यू जहां जीरो होगी उससे रेडियल नोट पता चलेगा, और साई थीटा की वैल्यू जहां जीरो होगी उससे एंगुलर नोट पता चलेगा। ठीक है, 1s इज ऑर्बिटल। ठीक है, 1s इज ऑर्बिटल। अभी याद है हमने ऐसा कुछ अभी एक एग्जाम क्वेश्चन किया था, ऐसे लिखा था 1s, और फिर हमने उसमें लिखा था कि बताओ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, है ना? तो कुछ याद आ रहा है लास्ट क्लास में? ठीक है, चलते हैं। So the value of sigma is 2zr by n e naught. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इवनिंग डाउट क्लास में? हाथ उठाओ। तो ये जो क्लास है ये ऑप्शनल नहीं है, उसमें अगर आप आओगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्स्ट्रा और हुआ, राइट? यू हैव मस्ट अटेंड। हाफ प्रेजेंट इज इक्वल टू एब्सेंट। आधा अधूरा ज्ञान बेकार है ना? चलो आज चलते हैं। So Sneha, we will come to this point. This is orbit and orbital. So orbit, चलो इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं. So what is the difference between orbit and orbital? So orbit is the first let's concept introduced by Bohr, and he was able to say कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, किस डिस्टेंस पे होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ही वाज एबल टू से कि भाई उसकी एनर्जी क्या होगी। सो ऑर्बिट वाज लाइक बोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, orbit and orbital, we are saying that the zones where the probability of finding electrons are going to be more. ठीक है, the orbits are, or another difference which we are going to say, orbits are said is spherical, but orbitals are not spherical. All orbitals are not spherical. Orbitals are also responsible for explaining the shape of molecule. जैसे अगर आपको पता हो तो CO2 is linear, है ना? और let's say if you are going to say कि H2O is V shape, है ना? H2O का मॉलिक्यूल की थोड़ा हायर लेवल की बातें हैं, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। यस श्रेया, यू हैव एनी डाउट? यस राजीव, क्या? हाँ बोलो बेटा। यस राजीव, क्या डाउट है अभी? हेलो सर, आपने ये साई आर थीटा फाई लिखा, तो ये सर एक साइड हुई इक्वेशन की, दूसरी साइड का इक्वल टू क्यों? दूसरी साइड की इक्वेशन मतलब? आई मीन ये इक्वेशन है ना सर, साई आर थीटा, ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन है ना। हाँ, तो फिर सर ये उसकी आई मीन इक्वल टू की, आई मीन ऐसा दूसरे से, या फिर यही एक साइड है इस इक्वेशन की, मतलब एलएचएस और ये वैसा। फंक्शन है ना, फंक्शन होता है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसे लिखते हो आप, हाँ तो यहाँ पे साई आर इक्वल्स टू दिस ऐसा लिखा हुआ है बस। हाँ, पर सर वो कहाँ है? वो कहाँ है मतलब? नहीं, आई मीन इक्वल टू तो दिख नहीं। अरे यार, मैंने बस ये यहाँ इसके नीचे ये लिख दिया, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। अच्छा हाँ, मतलब ये उसकी आर दूसरी साइड है। ये इसके इक्वल है, राइट? तो ठीक है भाई, सॉरी सर। ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, so let me give you more, let's say example, then I will take doubt. तो ये हम समझ में आ गई ना? So there is going to be no node present. Now let's say if I have to draw the graph. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, राइट, that is going to be somewhere like this. Let's say I am going to draw psi r, ठीक है, वर्सेस r का ग्राफ। ठीक है,
तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो r इक्वल टू 0 तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये आएगा और ये e टू पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर 0 इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड, है ना, 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा। We cannot say कि न्यूक्लियस पे क्या होता है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा साई आर। There is another graph if we are going to draw psi square r. अच्छा, नोट्स कैसे पता चलते हैं, किन वैल्यू पे ये 0 को कट कर रहा है, मतलब इस एक्सिस को कट कर रहा है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू लेट्स से कट एनीवेयर, है ना, देयर इज नो नोट प्रेजेंट, तो ये कहीं पे भी कट नहीं करेगा। So Abhilash, wait, just keep like I know कि lot of information is there right now जो आपने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, बट हम आएंगे जब ऑर्बिटल्स वगैरह पे आएंगे तब उसको समझेंगे। अभी बस इतना है कि आप ये समझते जाओ कि जो हम जैसे नोट्स की बातें कह रहे हैं, कैन यू फॉलो दैट और नॉट, ठीक है। सो ये ज्वाइन नहीं करेगा बेटा, इट्स नॉट गोइंग टू ज्वाइन, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन। ए की वैल्यू ए इज ए नॉट, आई थिंक बोर और ऑर्बिट है, ठीक है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। सो वट एवर द लेट्स से ओवर हियर द कांस्टेंट टर्म इज गोइंग, अगर एम्पलीट्यूड बोल रहे हो तो जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा वो एम्पलीट्यूड की तरह काउंट कर सकते हैं। एंड व्हाट ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली आर, ऑर्बिटल्स देखो क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी मैक्सिमम, राइट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो हो, 3 डायमेंशनल वेव इलेक्ट्रॉन वेव बताएगा, एंड लेट्स से द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट है उसकी उसका लेट्स से डायरेक्शन कैसा होगा। सो दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, सो दीज आर ऑर्बिटल, ठीक है। हर ऑर्बिटल की शेप रहेगी एंड वी आर एबल टू फाइंड कि उससे डायरेक्शन बनेगी एंड देन वी कैन से कि बॉन्ड एंगल क्या बनेगा। आगे की जो चीजें हैं, राइट, इन केमिकल बॉन्डिंग इफ यू आर गोइंग टू सी कि कोई मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में क्या बॉन्ड एंगल है, उसका शेप कैसा है ना। जैसे अगर मैं थोड़ा सा चलो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मान लो ये H2O है, तो H2O ऐसा कुछ है मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर गोइंग टू लेट्स से कंबाइन इन सच अ वे कि इनके बीच में कुछ एंगल जो है वो आपका 104 डिग्री के आसपास आता है। Now this cannot be explained on the basis of orbit कि भाई ये कौन सा डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में क्यों है, राइट। So this in the future we are going to see in chemical bonding कि ये कैसे शेप बन रहा है और how we are able to find the directional properties, so we will see, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं साई आर की बात, तो अब फिर से फोकस करते हैं कि क्या बातें हम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो डाउट्स होते हैं ना, हमारा सारा ध्यान डाउट्स पे चला जाता है, तो जो मेन बात होती है ना वो मिस हो जाती है और फिर और डाउट बनेंगे, है ना। तो जो मेन बात है वो क्या है कि मैंने आपको बोला कि ये जो फंक्शन है ये आपको दिए होंगे। नाउ आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैलकुलेट रेडियल लोड and how many number over here the let's say main concern is can we write the number of nodes, radial nodes और angular node, बस यही हमारा टारगेट है, ठीक है, कि नंबर कितने हैं। थोड़ा सा आइडिया कि अगर मान लो कोई ऐसे अननोन इक्वेशन दे रखी होगी तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। so that's it. So this psi square r is nothing but the same graph is going to come, and a similar graph is going to come like this. Little bit steep curve in comparison to this, है ना।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. Then there is another graph, that is TR, that is nothing but 4 pi r square psi square r. So for this graph you can say, देखो ये वैल्यू तो जीरो है नहीं, ठीक है, दिस वैल्यू इज नॉट जीरो, बट r तो जीरो हो जाएगी जीरो पे. So this graph will originate from zero over here. ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा. जैसे यहाँ पे जीरो पे नहीं था क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, बट सिंस वी हैव केप्ट जीरो ओवर हियर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा. तो इसको हम बोल देंगे, ये क्या हो गया आपका, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका. लाइक दिस इज गोइंग टू बी ग्राफ. और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम लेट्स से वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे आर मैक्स, मतलब द डिस्टेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है, all these terms, if all these graphs are going to cut this x-axis anywhere, those are going to represent nodes. तो जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर ये ग्राफ ऐसे दे रखा था, अच्छे ऐसा कोई भी ग्राफ ऐसे दे रखा था लेट्स से, ठीक है, अभी हम देखेंगे इस तरह का भी ग्राफ. तो ये एक जगह काट रहा है, तो उसमें कितने नोड मिलेंगे, हाउ मेनी नोड्स आर देयर. तो हम बोलेंगे कि इस r की वैल्यू के लिए ये साई r की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. So that means this point represents node. Here all of these graph are not going to cut, है ना, x-axis, so there is no node. ये बात हमने कंफर्म कर ली अभी. x-axis पे डिस्टेंस है r, है ना, दिस इज डिस्टेंस r, x-axis पे r है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r बना रहे हैं. Are you getting my point now? e की पावर माइनस एक्स के ग्राफ है ये, है ना. तो इन सब में e की पावर माइनस एक्स का पार्ट आएगा, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे दो ग्राफ का मल्टीपल हो गया, एक एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस एक्स, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है. सो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द, यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे. सो राइट नाउ यू कैन इमेजिन लाइक दिस कि ये तो केवल e की पावर माइनस एक्स के ग्राफ है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है. All R max represents antinode. Yes, R max represents antinode. सर आपने ये जो आर मैक्स वाला ग्राफ बनाया है सर वो कोई ऑर्बिटल के लिए है कि आपने ऐसे ही बनाया है? हाँ, ये वन एस के लिए है सर. तो वो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वाला ग्राफ, हाँ, ये इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सर बोलते वो, हैं हाँ रेडियल सर. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सर लेकिन वो तो साई आर ही होता है ना? साई आर नहीं होता है, तुमने मिस की है क्लास, सर अटेंड किया था. मिस की है, नहीं सर अटेंड किया था, मतलब हाँ रिकॉर्डिंग देख के. रिकॉर्डिंग देखा ना, तो रिकॉर्डिंग देखने वाले लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देखना इज वेरी चैलेंजिंग, डू नॉट फॉल फॉर दैट. हम रात रात तक पढ़ेंगे और फिर हम क्लास मिस कर देंगे, फिर हम सोचेंगे कि हम रिकॉर्डिंग कवर कर लेंगे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन रिकॉर्डिंग, यू नेवर नो कि कहाँ पे सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया है. आप तो बस 1x 1.5x और 2x पता नहीं कौन सी स्पीड से सुन रहे हो, सर वो आइडिया भी नहीं लगेगा कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चला गया. सो डू नॉट लाइक फील लाइक यार रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है, जल्दी खत्म हो जाता है. यही है ना स्ट्रेटजी. नहीं सर, मतलब कि मिस हो गया. ठीक है, कोई नहीं. So these are the, yes, हमने वो एक क्वेश्चन देखा था, उसमें देखा था कि a नॉट बाई z आ रहा था ना, आर मैक्स हीलियम के लिए 1s में a नॉट बाई z.
तो बस उससे ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये ए नॉट के टर्म्स में आ जाएगी, ए नॉट बाई 2 और समथिंग. So graph is only going to touch x-axis at infinite, है ना. अगेन इसमें क्या है, e की पावर माइनस एक्स का कंट्रीब्यूशन है ना, जो हमने यहाँ बात करी है ना, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती. 4 पाई आर मतलब इसका स्क्वायर भी ले लोगे तो भी जीरो नहीं होगा, और 4 पाई आर स्क्वायर में आर भी जीरो नहीं होगा. आर इनफाइनाइट तक जीरो है क्या, बस आर जीरो पे जीरो है, तो वहां पे हमने बोला होल फंक्शन इज गोइंग टू बी जीरो, बट उसके बाद कभी कोई चीज जीरो नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट गोइंग टू कट, है ना, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे. तो अभी एक बार 2s का ग्राफ और लिख लेते हैं, आई थिंक देन थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाएगी. ठीक है, राइट, 2s के लिए वेट वेट वेट. तो पहले ये ड्रॉ कर लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इनमें ड्रॉ करने में, जस्ट लेट मी चेक. So okay, I'll take doubt then. Okay, बोलो चिंत. सर ये साई आर थीटा 5 फिर हम थोड़ा तेज बोलोगे, लाउडली. सॉरी सर. सर वो साई आर थीटा 5 वी कॉल दैट द वेव फंक्शन ना, पूरा हम्म पूरा फंक्शन. और साई आर और साई थीटा 5 अलग अलग उसके पार्ट्स है. right. So I have already told you कि psi r has no, let's say, dependence on psi theta phi. यस सर. ओके ओके. यस सर. गॉट इट. ठीक है, तो एक तो एंगल बता रहा है वाला पार्ट है, और एक केवल और केवल आपका x के टर्म्स में पार्ट है, राइट. सो r के टर्म्स में पार्ट है, सो दैट इज यस पल्लव. ठीक है, व्हाट इज द डाउट, एंड लॉट ऑफ डाउट आर कमिंग. वेट, अभी थोड़ा देर रुको भाई, आदि नॉलेज में बहुत सारे डाउट आते हैं, वो बेकार है. सो लेट मी ड्रॉ फॉर 2s. तो आपको हमेशा इक्वेशन याद रखनी है कि इक्वेशन में क्या हो रहा था. ठीक है, सो फॉर 2s, for 2s orbital, the psi r value is, है ना, again I am writing psi r, psi theta phi. So psi r value is, let's say, 1/2 root 2 z by a naught 3/2 2 minus sigma e to power minus sigma by 2. Man, psi r theta phi की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना. किसी भी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट जो है, अगर ये s है और दूसरा भी s है ना, so this is going to remain same. So 1/4 pi और 1/2. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, if you are going to see for radial node, you are going to write psi r equals to 0. ये एक इक्वेशन दे रखी है, इससे घबराना नहीं है ना. बस यू हैव टू चेक जस्ट कि कौन सी वैल्यू जीरो हो सकती है. तो ये जीरो होगा नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट टर्म है, e की पावर माइनस एक्स जीरो होगा नहीं, तो बचा क्या, ये जीरो गया. तो फॉर रेडियल नोड psi r इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिला, 2 minus sigma equals to 0. So sigma equals to 2. Now you are going to write sigma की value, which is nothing but 2zr by n a naught हमने लिखा था, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2s. So this is going to be, right, 2zr by 2 a naught is equals to 2. So you can say r is nothing but, कट गया, है ना. So r is nothing but 2 a naught by z.
ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसा हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं। राइट नाउ वी डोंट नीड टू जस्ट चेक कि हर बार आर की वैल्यू क्या होगी, वी कैन ओनली से कि इसमें रेडियल नोड कितने होंगे, ठीक है। और साई थीटा फाई तो हमें पता है एस ऑर्बिटल के लिए तो एंगुलर नोड 0 है, सो वी कैन से फॉर एंगुलर नोड no angular node present in s orbital, ठीक है। तो अब what we are able to understand, मतलब इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिला, हमें एक रेडियल नोड मिल गया, राइट। तो वो कैसे होगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, है ना। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कई सारे ग्राफ दिखेंगे, है ना। जब शॉर्डिंजर के क्वेश्चन देखना चालू करोगे तो आपको ग्राफ्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे। सो द थिंग इज वी नीड टू लेट्स से अंडरस्टैंड, बहुत कुछ नहीं पता करना है, बस ये पता करना है ये ग्राफ किसको बिलोंग करता है ना। तो अगर मैं साई आर और आर का ग्राफ खींचूंगा तो ये क्या होगा, ये पहले तो 0 पे 0 नहीं है और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ये 0 बन रहा है, राइट। कहीं पे तो यहाँ साई आर 0 आ रहा है, फिर ये ऐसा है। So this point is going to tell you nodal surface और radial node, है ना, nodal surface, ठीक है। तो इस r की वैल्यू के लिए, राइट, ये जो भी r की वैल्यू आएगी तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें एक सरफेस मिलेगी, रेडियल सरफेस मिलेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। ये z है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 2 नहीं है, ये z है ना, ये z, ठीक है। तो आप ये थोड़ा आइडिया लग रहा है, अब अगर साई स्क्वायर आर लेना होगा तो साई स्क्वायर आर में जो इंपॉर्टेंट टर्म बात याद रखनी है वो ये होगी, आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पॉजिटिव ही रहने वाला है ग्राफ, है ना। दैट ग्राफ इज ओनली गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज साई स्क्वायर, राइट। so the graph is going to be like this और फिर यहाँ से ये ऐसा, तो इसका जस्ट है ना इमेज इधर बन जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कोई भी ग्राफ आपको दे रखा होगा तो आपको बस ये देखना है ये कितनी जगह ये कट कर रहा है, जितनी जगह कट कर रहा है दोज आर गोइंग टू बी नोडल सरफेसेस और रेडियल नोड, मतलब उन पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके आपको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हो। So this is the function, again this is the function, this cannot be 0 ना, for any theta phi value, ये तो constant value लिखी हुई है कोई, for any theta phi value this is not going to be 0। ऋषिका समझ में आया, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो मुझे, सारे के सारे लोग पहले ध्यान से देख लो कि मैंने क्या लिखा है ना। एक ये फंक्शन मैं अब क्या बोल रहा हूँ वो सोचो, ये क्वेश्चन एक इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कैन आई रिलेट दिस ग्राफ विद दिस और नॉट। तो ये आपको अगर इक्वेशन दे रखी है तो कैन फर्स्ट थिंग इज कैन यू फाइंड कितने नोड्स होंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो रही होगी, राइट, ठीक है। एनीवे दीज ग्राफ्स वी आर ड्राइंग विद रेस्पेक्ट टू आर ओनली, नॉट विद द थीटा एंड फाई। तो हमारा ये साई आर का ही ग्राफ बन रहा है केवल, राइट। साई थीटा फाई तो मैंने इसलिए लिखा है जस्ट टू टेल यू कि कहाँ पे नोड और हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर इतनी बात कहीं पढ़ी हो सुनी हो तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है। तो वहां पे हम बोल ही नहीं सकते कि कोई भी ऐसा प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, है ना। कोई भी एक्स वाई वाई जेड कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा, राइट।
because it is spherical in all three dimensions. So this part you can understand from here. आपने क्या है रिजल्ट पढ़ रखे हैं, आपको शायद ये पता होगा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो फिर क्या होगा, इसमें वैसे भी कोई नोड आना नहीं है, नोडल प्लेन आना नहीं है, हर प्लेन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। सो दैट कैन बी कंफर्म बाय दिस फंक्शन, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल जो है वो अगर मैं स्फेरिकल बोल रहा हूँ, लेट्स से I'll show you something. ठीक है, ये I have let's say taken from Wikipedia, so you can see like this. Okay. ये आगे मैं वैसे दिखाऊंगा, right? So s orbital they have written like this. दिख रहा है ये ऐसा स्फेरिकल बनेगा, है ना, and they have cut. फिर आगे अंडरस्टैंड करने के लिए ये कट करते गए, राइट, ऐसे। तो ये 3 ये बड़ा हुआ हाफ हेमिस्फीयर हुआ, इसमें बीच बीच में जो ये जो अलग अलग कलर हो रहे हैं, है ना, राइट, दोस लेट्स से पॉइंट जहाँ पे ये कलर चेंज हो रहे हैं, दैट इज नोड्स, रेडियल नोड बन रहे हैं। सो विल कम टू दैट पॉइंट, थोड़ा आगे आगे बताएंगे कि पोजीशन ऑफ नोड्स क्या है, कैसा है, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर, ठीक है। अभी बस आप इतना देखो ये शेप कैसा आ रहा है, ये स्फेरिकल शेप आ रहा है सबका, ये हेमिस्फीयर बना के रखा हुआ है ना, तो ऐसा मत सोचना कि ये आधा होगा, ये पूरा है। उन्होंने अंदर दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर कैसे कैसे दिखेगा और कैसे नोट्स होंगे, पोजीशंस क्या होंगे। एनीवे, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइडेंटिफाइड कि नोट्स हैं या नहीं है, देन वी हैव ड्रॉन द ग्राफ, थोड़ा समझ लिया ग्राफ को कि यहाँ पे ट्रिक क्या है। अगर मान लो r इक्वल टू 0 पे ये मतलब 0 नहीं है साई r का ग्राफ, है ना, अगर r इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, ठीक है, तो ये s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है। फिर उसके बाद हमने साई स्क्वायर r का ग्राफ लिख लिया 2s ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल में हमें एक नोड मिल गया, एंगुलर नोड तो यहाँ पे भी नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का ग्राफ, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, एक नोड मिला है हमें, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे। यहाँ पे क्या होता है, पीक की हाइट जो है ना वो बढ़ती जाती है ना, इस पीक से इस पीक की हाइट बढ़ती जाती है। क्यों, आर की वैल्यू बढ़ रही है ना, आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ेगा, तो ये पीक क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, है ना, इस डिस्टेंस पे, राइट, दैट्स व्हाई ये कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे this is going to be r max। फिर से समझ लेते हैं, ये ग्राफ में 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का ग्राफ है, ठीक है। साई स्क्वायर r का ग्राफ आपने कुछ ऐसा देखा था, राइट। फिर यहाँ पे ये 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का ग्राफ है, तो r की वैल्यू 0 के लिए 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। यहाँ पे एक नोड बता रहा है, दिस इज गोइंग टू टेल यू ये वन नोड इज प्रेजेंट ओवर हियर। अच्छा, ये पीक बढ़ा क्यों, तो बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि आर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, राइट, है ना, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर एक से ज्यादा नोट्स आएंगे तो ऐसे पीक बढ़ते जाएंगे। अभी हम देखेंगे उनको आगे, और एक आध दो ग्राफ और ड्रॉ करेंगे तो उनमें देखेंगे, ठीक है। तो ये आर मैक्स आ गया। तो आर मैक्स अगर दो कंपेयर कर लें, आर मैक्स ऑफ 1s और 2s, है ना, किसका आर मैक्स मतलब ज्यादा ये डिस्टेंस रहेगा, तो ये 2s का, है ना। So max probability of finding electron in 2s is going to be further, let's say, far from the nucleus comparison to probability of finding electron in 1s orbital। ठीक है, तो ये जो important relations हैं, you just have to, है ना, remember। अब मैं डाउट ले रहा हूँ भाई, है ना, डाउट ऐसे पूछना कि बहुत सारे लोग और कंफ्यूज ना हो जाए ना, मतलब ये प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे डाउट्स में कोई किसी के और के डाउट सुन के और कंफ्यूज हो जाता है। सो थोड़ा क्लियर डाउट पूछो, है ना।
और जो बातें भी मैंने पढ़ाई नहीं है ना वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, गाड़ी स्लो है अपनी, ठीक है। ओके, यस गौरांश। यस सर। सर ये जो आपने और रेडियल नोड के जो नीचे आपने जो इक्वेशन लिखा है, सर ये साइन का क्या मतलब है? किस साइन का? इक्वल्स के लेफ्ट साइन जिसका विच इज इक्वल्स टू 2πr/NaO 2zr/NaO। सिग्मा, सिग्मा उसको बोलते हैं, 2zr/Na0, दैट इज सिग्मा। ओके, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2zr/Na0। ओके सर, थैंक यू। So ईशान, we will be able to understand the ability कि कैसे वो ग्राफ याद रखने। बहुत सारे ग्राफ हैं, जितने ऑर्बिटल हैं सबके लिए ग्राफ हैं, बट you will be able to understand कि उसमें मैं important point बता दूंगा कि कैसे याद रखने। यस अथर्व। सर वो रेडियल नोड में मुझे ना 2 सिग्मा इक्वल टू 2 के बाद क्या इक्वेशन कैसे निकला नहीं समझा। किसमें? रेडियल नोड में सिग्मा इक्वल टू 2 के सिग्मा बाद। की वैल्यू हमने यहाँ पे बताई हुई है, इधर मैंने यहाँ पे किनारे में ऐसे लिखा हुआ था कि व्हाट सिग्मा रिप्रेजेंट्स, कहाँ? यहाँ पे व्हाट सिग्मा रिप्रेजेंट्स इज 2zr/Na0, ठीक है। अब आपको पता चला सिग्मा की वैल्यू 2 जब होगी तब रेडियल नोड मिलेगा, तो आपने सिग्मा की वैल्यू रख दी यहाँ पे। सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2zr/Na0। n क्या होता है? अच्छा, n होता है ये ऑर्बिट, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि कौन सा ऑर्बिट है। तो जैसे 1s 2s 3s ऐसा कुछ भी लिखा है, तो उसमें जो आपका न्यूमेरिकल नंबर है दैट इज गोइंग टू टेल यू ऑर्बिट, एंड s p d f दीज आर गोइंग टू टेल यू सबसेल, कौन सा सबसेल है। सो विल कम टू दैट पॉइंट। थोड़ा सा अभी बस आप ये समझ लो कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज n वैल्यू ऑर्बिट। तो ये n की वैल्यू आपको 2 पता चल गई, यू हैव कट इट एंड देन यू कैन सॉल्व कि ये 2a0/z आ गया। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, गॉट इट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट डाउट। हाँ बोलो भाई। Sir, as we know, the 1s orbital is always spherical. So if it is spherical, the intensity remains constant all over the nucleus and the atom. So can we say that the probability Why of it is constant? How you derive all the conclusion by yourself? Sir, because there are no radial nodes present, meaning the whole area is an antinode. No. So that is just telling you a zone. Spherical means there is a zone where electron can be present. We are not saying कि everywhere it is going to be equal probability. अगर equal probability हो जाएगी तो फिर इतना सब पढ़ने की जरूरत क्या है? So sir, if there are no radial or angular nodes present, what does that mean? Like it is hollow? मतलब कोई सॉलिड स्फीयर थोड़ी ना है कि इमेजिनरी। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकती है और उसमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहां पे बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव है ना, इलेक्ट्रॉन की वेव है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, किस पॉइंट पे। Sir, but it still remains three-dimensional. It cannot be vacuum at a certain place. So इट कैन बी, it cannot be vacuum, right? There is nothing over there. There is no electron. फर्स्ट थिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड इट इज एन इमेजिनरी लेट्स से थिंग कि हम ये कह रहे हैं कि इतने जोन में कहीं हो सकता है, तो वो कुछ ऐसा भरा हुआ नहीं है, कुछ ऐसा खाली नहीं है। इमेजिन ये कोई न्यूक्लियस है आपका, उसके आगे पूरा ऐसा खाली, मतलब सब कुछ आप हर डायरेक्शन में जा सकते हो, राइट। नाउ वी आर सेइंग दिस इज द लेट्स से जोन, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे आपको बोला जाए कि आप कहाँ रह सकते हो, तो बोला जाएगा भाई ये जो लड़की है वो इस एरिया में देखी जाएगी ज्यादातर, है ना। उस एरिया में भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपकी कहाँ पे है? अपने घर में है ना। सो आई एम टेलिंग यू कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस गर्ल इज इस पोजीशन पे, ये एड्रेस ले लो, लेकिन ये सी कैन बी लेट्स से ऑब्जर्व्ड इन दिस एरिया इज, तो वैसे हम बता रहे हैं। So we are just calculating the maximum probability of finding an electron. Yes, we are just calculating maximum probability, right? That's Okay. it. Okay, got it, sir. बोलो स्नेहा।
Sir, for the first graph of angular node of 2s orbital, what does that double-headed arrow represent? नहीं, हमने एंगुलर नोड का तो ग्राफ ही नहीं ड्रॉ किया है. एंड कौन सा वाला ग्राफ बोल रहे हो आप? First graph of angular node in 2s orbital we are drawn. देखो ये एंगुलर नोड का बस यहाँ पे ये कंक्लूजन आ गया कि नो एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट. अब ये अलग से ग्राफ चल रहे हैं. Okay, sir. In the first graph, what does that double-headed arrow represent? डबल हेडेड एरो, अच्छा ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इफ यू आर गोइंग टू गो, वैल्यू आएगी ना, आर की कुछ वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, Yes. है ना? क्या वैल्यू आई? जैसे अगर हमने ये कैलकुलेट किया देन दिस वैल्यू केम 2a0 by z. ये वैल्यू क्या आई हमारी, है ना? हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2a0 by z. इस पे क्या मिला हमें? इस डिस्टेंस पे जाके रेडियल नोड मिल गया. Okay, okay. Okay, sir. ठीक है भाई, और बताओ भाई डाउट. चलें आगे, अब आगे ना 2p. Sir, just now you had written that Rmax of 1s is less than Rmax of 2s. Then you said something regarding 1s and 2s. Can you repeat that? So I just said कि जैसे जैसे साइज मतलब 1s 2s क्या बता रहे हैं? 1s 2s बता रहे हैं कि there are two spherical let's say orbitals. ठीक है, तो 1s के कंपैरिजन में 2s और बड़ा होगा. ठीक है, तो ऐसे 3s होगा तो 3s और भी बड़ा हो जाएगा. तो अगर हम न्यूक्लियस से देखेंगे कि व्हाट वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2s के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी एट अ फार डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट 1s ऑर्बिटल. ये बता रहे हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एट 0 ये नोड नहीं कंसिडर होगा. ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट कंसिडर्ड नोड. न्यूक्लियस इज नॉट कंसिडर्ड नोड. ठीक है, चलो यशवर्धन, आपको समझ में आ गया बेटा? Sir, one more. Sir, what is, just now you said that probability of finding electron will be at far distance. So what is the For meaning 2s of that? फॉर 2s ऑर्बिटल, जैसे अभी मैंने बोला कि अभी हम आगे देखेंगे कि एक, अच्छा थोड़ा इसमें समझ लेते हैं कि एक जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं यशवर्धन, मेरे साथ. Yes sir, yes sir. ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशंस पे होगा. सो वी हैव टू डिफाइन एवरी लेट्स से 11 के 11 एटम की पोजीशन हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कहाँ पे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव लेट्स से सेग्रीगेटेड इनटू क्वांटम नंबर. वी हैव सेट कि देखो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे होगा, सेकंड, ऐसे एड्रेस दिया हुआ है. जैसे मान लो आप एक सिटी हमें बसानी हो और उसमें 11 लोगों को रखना हो, तो हमने 11 लोगों के एड्रेस दे रखे हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. अब हमें ये पता चल गया कि मान लो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है. अब हमें ये पता चल गया कि ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है रहने की, वो Rmax है. Okay sir, got it. ठीक है, सर हाँ बोलो भाई, मुझे ये एंगुलर थोड़ा तेज बोलोगे? हाँ सर, मुझे एंगुलर नोड का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमने एक इक्वेशन बनाई थी, साई आर एक्स वाई जेड को साई आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया था, रिमेम्बर? तो मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट एनी एंगल दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. तो आर का थीटा एंड फाई से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने साई आर को अलग लिख लिया और थीटा फाई की वैल्यू को अलग अलग लिख लिया. ठीक है, दो एक फंक्शन बना लिए. अब वी आर चेकिंग कि भाई कहाँ पे आर की वैल्यू 0 होगी, तो सॉरी कहाँ पे साई आर की वैल्यू 0 होगी, किस आर के लिए साई आर की 0 होगी, साई आर की वैल्यू 0 होगी. इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ऐसे ये स्फेरिकल लेट्स से सरफेस लेंगे जहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी. और क्या हो सकता है, और हम देखेंगे एंगुलर नोड का लेट्स से इंपॉर्टेंस क्या है. एंगुलर नोड का इंपॉर्टेंस ये है कि दैट इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज टू ऑर्बिटल्स. जैसे s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल जो है
p ऑर्बिटल इफ वी आर गोइंग टू सी, है ना, जैसे ये p ऑर्बिटल है, p के 3 पार्ट हैं, px py pz, ऑल दीज आर लुक्स लाइक डम्बल शेप, ठीक है, ये सब कैसे हैं, डम्बल शेप है, ठीक है। तो ये जो डम्बल शेप है ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, आइदर इट इज गोइंग टू ओरिएंटेड टुवर्ड्स द z डायरेक्शन, pz z की डायरेक्शन में होगा, py y की डायरेक्शन में होगा, px x की डायरेक्शन में होगा। सो देयर द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इज कमिंग थ्रू, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किससे आ रही है ना, एंगुलर लेट्स से उससे आ रही है, एंगुलर फंक्शन से, ठीक है, कि भाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है भाई, और डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स हैं यार आप लोगों को। हाँ सर ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था कि आर मैक्स 1s इज लेस देन आर मैक्स 2s, सर ये वाला स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगेन मैंने बोला कि साइज जो है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे साइज देखो है ना, बढ़ता जा रहा है ना, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी साइज बढ़ता जाएगा। तो अगर साइज बढ़ रहा है, राइट, लेट्स से, तो क्या होगा, साइज बढ़ने के कारण द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 2s इज गोइंग टू बी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस कंपैरिजन टू 1s, 1s छोटा है 2s बड़ा है, यस, बस यही हम कह रहे हैं। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब हाँ, दैट इज ऑफ द फाइंडिंग एवरीथिंग इज गोइंग विद द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बट अब इस प्रोबेबिलिटी को हम सर्टेनिटी मान लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड बेटर, है ना, कि मतलब ठीक है अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि जितनी भी आगे की जितनी भी केमिस्ट्री है वो प्रोबेबिलिटी छोड़ के बस ये सोचती है कि इलेक्ट्रॉन अब बस इसी ऑर्बिटल में है ना, वो वाले केस नहीं लेती है कि अभी ऑर्बिटल्स क्या है या ये जोन्स क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है। हम 10% प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि ये इन जोन्स में ना हो, है ना, ये जो हम जोन्स ड्रॉ कर रहे हैं इनमें ना हो, लेकिन आगे की जो केमिस्ट्री है उसमें हम वो कंसिडर ही नहीं करते, हम बस ये कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही है। तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी चलेगा, सही है, आगे के लिए आपको बस यही याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल ओनली। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैन वी इफ वी आर गोइंग टू लेट्स से गेट सम इक्वेशन, कैन वी फाइंड रेडियल नोड और लेट्स से कैन वी फाइंड एंगुलर नोड और नॉट। अगर हमें इक्वेशन पता है तो कैन वी लेट्स से डिड्यूस सम ग्राफ, और अगर ग्राफ दे रखे हैं तो हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ s ऑर्बिटल का है, p ऑर्बिटल का है, किसका है, तो इस पे हम आते हैं, राइट। So yes, we can calculate Rmax value also if you are going to differentiate with respect to R. dpr को आप differentiate करोगे then you can calculate Rmax value. ठीक है, चलें आगे। So I have already given the definition of radial and let's say angular node. बताया है ना angular node और radial node क्या होता है? Yes or no? बताया है ना? Yes. हाँ, करेक्ट। चलते हैं आगे। तो रेडियल नोड का मतलब है नोडल सरफेस, है ना, न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। और एंगुलर नोड का मतलब है नोडल प्लेन, ठीक है, क्लास सारी अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है। चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे, अभी तो हम एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे थे, लेट्स स्टडी लिटिल बिट अबाउट p ऑर्बिटल। सो वी आर गोइंग टू से लेट्स से फॉर 2p, for 2p orbital psi s psi r psi theta phi। अब p ऑर्बिटल के लिए जो थीटा फाई की वैल्यू है वो होती है लेट्स से, तो इसमें भी अलग अलग है ना, p ऑर्बिटल में अलग अलग है, लेट्स से px 2px में देख रहे हैं, तो psi r की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है 1/2√6 z by a naught और 3/2 सिग्मा e to power minus सिग्मा y2, ठीक है। ये psi r की वैल्यू दे रखी है। psi थीटा फाई की वैल्यू px के लिए दे रखी है 3/4 पाई 1/2
साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। नाउ जस्ट right, x is x-axis. So over here just it is going to tell you कि कहाँ पे हमें एंगुलर नोड मिलेगा और कहाँ पे हमें रेडियल नोड मिलेगा। तो कैन यू सी कि दिस वैल्यू कैन बी जीरो और नॉट? पहले बताओ मुझे, हाँ ना करके बताओ, ये वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? यस और नो, जस्ट राइट नो और यस। ओके, अपार्ट फ्रॉम वन एवरीवन इज सेइंग नो। ठीक है, और सिग्मा तो जीरो हो नहीं सकता है ना, सिग्मा क्या है? 2ZR/N/A0, राइट? तो ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, ये जीरो हो नहीं सकता, सिग्मा जीरो हो नहीं सकता है ना, राइट? सो व्हाट विल हैपन, सिग्मा कहाँ जीरो होगा? आर की वैल्यू जीरो पे होगा, दैट इज न्यूक्लियस। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा और कहीं तो जीरो हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो रेडियल नोड। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, है ना, बस अब यहीं पे लिख देता हूँ, नो रेडियल नोड। ठीक है, अब 2p ऑर्बिटल में कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ थीटा फाई की वैल्यू, मतलब साइन थीटा, और मतलब किस वैल्यू के लिए ये बात जीरो हो सकती है ना, किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जीरो हो सकती है? अगर साइन थीटा में थीटा जीरो हो जाए तो जीरो तो हो जाएगी। अगर साइन थीटा जीरो हो जाए दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट? और कॉस फाई जीरो हो जाए, मतलब इनमें से है ना, या तो ये या फिर ये, और कॉस फाई जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा ये, है ना, दिस इज गोइंग टू बी फाई इज नथिंग बट पाई/2, है ना? तो ये वैल्यू जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब है जेड एक्सिस। थीटा इक्वल्स टू 0, मेरे पास जगह कम है, मैं कैन आई राइट, है ना? थीटा क्या होता है? जेड एक्सिस से एंगल होता है, राइट? रिमेंबर आर थीटा बाई पोलर कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस। और ये फाई जो है वो पाई/2 है। फाई क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंगल, तो क्या मिलेगा? वाई एक्सिस। तो हमें, है ना, हमें एक नोडल प्लेन मिल गया। कौन सा नोडल प्लेन? इज ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी YZ प्लेन। तो इसीलिए जब अगर हम अभी थोड़ा देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेट्स से px की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से x डायरेक्शन इन्होंने जो दे रखी है, मान लो ये x है ना, और y लेट्स से इन्होंने दे रखी है ऐसे, है ना, ये y है, और z इन्होंने ऊपर दे रखा है लेट्स से व्हाटएवर, लेट्स से, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। सॉरी, z इधर नहीं, x इधर नहीं, x y एंड z, लेट्स जस्ट अज्यूम ओवर हियर, ठीक है, जैसा उन्होंने दे रखा है। तो ठीक है, एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। So let's say this is x in this direction, y in this direction and z in this direction. So can you see कि ये जो प्लेन है, मतलब ये yz वाला प्लेन है ना, तो इसको काट रहा है बीच से, है ना, इस प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जो ओरिजिन से पास हो रहा है yz, y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में। So that's the angular, let's say, plane which is passing through the, let's say, origin, and in y and z axis, along y and z axis there is no electron density. So the only electron density is going to be in, let's say, this along the x axis in xy plane or xz plane, है ना, तीन प्लेन है, xy, yz, zx, right? तो yz में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? बाकी दोनों में है, xz, xy में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो दैट्स दे आर गोइंग टू आस्क, इट इज अ वेरी इजी टू रिमेंबर। कैसे और याद रख सकते हैं? एक और ट्रिक है कि अगर यहाँ x लिखा है तो बाकी जो दो एक्सेस आएंगी वो यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाएंगी। तो इसी तरह से py के लिए क्या होगा? py के लिए क्या होगा? xz प्लेन। py के लिए क्या होगा? xz प्लेन, है ना, ये देख लो, है ना, ऐसे xz प्लेन अगर वी आर गोइंग टू ड्रॉ, राइट, along this axis x
और ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा हमें, है ना, नोडल प्लेन मिल जाएगा। और ये जेड के लिए देख लो, पी जेड के लिए ये एक्स वाई प्लेन, ये तो दिख रहा होगा ऐसे धीरे से, हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो कुल मिला के क्या है, ये आसान तरीका है समझने का, मतलब रीजन क्या है, क्यों है, इसे हम समझ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अभी मैं बस इस पे आता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि अगर px लिखा हुआ है तो yz प्लेन हो गया, py लिखा है तो zx प्लेन हो गया, एंड pz लिखा है तो xy प्लेन। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ नोट, है ना, नो रेडियल नोड इन, नो रेडियल नोड, node in let's say 2p orbital and one angular node in 2p orbital. So total nodes are 1. So here you can also see कि total nodes क्या होते हैं, n minus 1. Total nodes क्या होते हैं, n minus 1. So for 2p n is 2. So for 2p n is 2. 2 minus 1 1. So total node क्या आ गए, radial node 0, one angular node. So total nodes are 1. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने एक फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कई सब जगह बस वही फॉर्मूला पूछा जाता है, राइट? ये सब जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बस नॉलेज के लिए अच्छी है, ये पूछ मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो गए यहाँ पे 0, और यहाँ पे नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो गए 1। अभी मैंने n माइनस l माइनस 1 और l की वैल्यू नहीं बताई है, तो जैसे ही मैं वैल्यू बता दूंगा तो और आसान हो जाएगा। अभी तो बस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैन यू चेक, कैन यू आइडेंटिफाई, काइंड ऑफ। ठीक है, जब मैं क्वांटम नंबर बताऊंगा तो और आसान हो जाएगा। सो वन एंगुलर नोड इन 2p ऑर्बिटल, सो टोटल नोड्स कितने हो गए, हेंस टोटल नोड्स इक्वल्स टू 1। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे कि px ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, yz प्लेन। सी py के लिए क्या होगा, py ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा ये zx प्लेन, एंड pz के लिए क्या हो जाएगा, xy प्लेन। ठीक है, अब इनका ग्राफ देख लेते हैं, जैसे साई आर साई स्क्वायर आर। तो साई आर का ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें रेडियल नोड है नहीं है, तो क्या ये एक्स एक्सेस को कट करेगा, नहीं करेगा। आर इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। अभी हमने फंक्शन देखा था सिग्मा, उसमें सिग्मा का टर्म आ रहा है, राइट, कहाँ गया, ये सिग्मा का टर्म आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, आर 0 पे क्या होगा, 0 होगा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। एस ऑर्बिटल पे आर 0 पे 0 नहीं है, पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, आर 0 पे 0 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन एस एंड रिमेनिंग पी डी एफ। ठीक है, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये सब 0 से स्टार्ट होगी। ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। साई स्क्वायर आर का ग्राफ लिखेंगे तो क्या होगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ऐसे और बढ़ गया थोड़ा, एंड 4 पाई आर स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे तो वो भी ऐसे ही आएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ग्राफ का बिहेवियर यहाँ पे सेम ही है सब। दिस इज साई आर ग्राफ, है ना, जस्ट टू आइडेंटिफाई रेडियल नोड कहाँ पे होगा, ये बात याद रखनी है।
Hello, sir. Sir, can you explain that why that cos sin theta is तुम्हारी आवाज बेटा equal to बहुत कट 0, रही है. so why it is z axis and that once. Hello, sir. हाँ फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज Hello. कट गई काफी. हाँ. Sir, can you explain that why when sin theta is equal to 0, then why it is z axis? तो आपको साइन थीटा फाई को 0 रखना है, इनमें से कोई एक 0 रख दो तो 0 हो जाएगा पूरा. चाहे ये फंक्शन 0 हो Yes, जाए, sir. चाहे ये फंक्शन 0 हो जाए, तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. तो बस वही हमने किया है. No, so why it is why we called it as z axis that? तो ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए. हमने बताया था z एक्सिस में कि क्या कहते हैं, जो हमारा वेक्टर है r वेक्टर, वो एंगल बना रहा है थीटा z एक्सिस से. Yes, sir. तो अगर थीटा वैल्यू 0 हो गई तो क्या मतलब क्या हुआ, अलोंग द क्या हो गया, वो थीटा वैल्यू 0 हुई तो क्या हुआ, z एक्सिस हो गया. अब ऐसे ही फाई होता है एंगल विद रेस्पेक्ट टू लेट्स से x एक्सिस. तो पाई बाय 2 पे क्या मिलेगा हमें, फाई जो एंगल है ना, पाई बाय 2 पे क्या मिलेगा, y एक्सिस मिलेगा बस. तो yz प्लेन ऐसे बोला. Yes, sir. Understood, sir. Thank you. So yes, in this plane which is passing through the nucleus is going to be 0. So basic importance of radial and angular node is just to tell us that कि कहाँ पे बाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो उनके बीच में कहीं पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ये सब है वैल्यूज. आइडेंटिफिकेशन मिलेगा भाई कि कौन सा वाला आप बता सकते हो. जैसे अभी हमने 2s में देखा, 2s में एक रेडियल नोड है बट एंगुलर नोड 0 है. 2p में देखा तो रेडियल नोड 0 और एंगुलर नोड 1 है. ठीक है, अगर दोनों को में डिफरेंशिएट होगा तो ऐसे हम बता सकते हैं. तो अब मैं बताता हूँ, ये तो मैंने बहुत सारे ग्राफ लिख लिए हैं. ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कुछ और बातें. ठीक है, ये आइडिया लग गया, ऐसे ऐसे आएगा. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा नोट करके लिख देता हूँ ताकि आई डोंट हैव टू लेट्स ड्रॉ फॉर ऑल. नोट. ठीक है, सो नोट इज, अच्छा यहाँ पे एक आरमैक्स और आ जाएगा और यहाँ पे लिख लो आरमैक्स of 2p is going to be less than Rmax of 2s for same n value. अगर ये दोनों 2s and 2p हैं, ठीक है, अगर हमें दोनों मिल रखे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम एक ही बन रहा है यहाँ पे, राइट. और इसमें क्या बनेगा, आ गया पुराने वाले में आफ्टर दिस वन नोडल पॉइंट ये Rmax आएगा, राइट. तो थोड़ा दूर हो जाएगा. तो कंपैरिजन टू लेट्स से अगर सेम वैल्यू ऑफ n है, ठीक है, और 2p एंड 2s हमें देखना है, तो Rmax कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे मतलब पहले मिल जाएगा 2p में कंपैरिजन टू 2s. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, Rmax वाली बात. आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? 2s and 2p आर ऑर्बिटल्स. अभी यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ना, ये हमने बोला कि इस ऑर्बिटल के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए. अभी ये आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इलेक्ट्रॉन का अभी हमने घर बना दिया. ऑर्बिटल इज नथिंग बट एक घर हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक घर हो गया, उसमें हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है. 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसकी इस घर में रहेगा, है ना. अलग अलग तरह के घर हैं ना, लोगों के घर अलग अलग होते हैं ना. किसी का घर 2 BHK, किसी का घर 3 BHK, किसी का घर लेट्स से स्फेरिकल. इमेजिन कर लो कि किसी का घर स्फेरिकल, किसी का घर डंबल शेप टाइप,
लाइक दैट, इलेक्ट्रॉन के घर हैं। ठीक है, तो विल कम टू दैट पॉइंट। तो ये 2s 2p ये सब ऑर्बिटल्स हैं और लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं, अभी मैं ग्राफ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं, राइट, फॉर और वैल्यूज ऑफ एल, है ना, वैल्यूज ऑफ एल, यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं एंड एल वैल्यू है। तो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, है ना, एस पी डी एफ, और आगे अगर हमें लिखना हो जी के लिए फिर 4, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, सो ऑन, जी एच समथिंग, एच के लिए 6। बट यहीं तक, अभी तक जो नोन एलिमेंट्स हैं उनमें केवल एफ तक ही ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ठीक है, दीज आर इमेजिनरी, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये हो सकते हैं। तो ये एल की वैल्यू है, ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ये क्या बता रहे हैं, एल की वैल्यू से क्या मिल रहा था, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो गए, नथिंग बट एल, तो यहाँ पे मिल गया 1, सॉरी यहाँ पे मिल गया 0, यहाँ पे मिला 1, यहाँ फॉर ऑल द डी angular nodes are going to be 2, 3 and similarly 4, 5, that's it, like that, ठीक है, number of angular node। फिर आप बात आती है, let's say finding number of radial node, finding number of radial node, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू दी गई है अकॉर्डिंग टू लेट्स से फॉर्मूला की क्या क्या बन सकता है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है, या 5 आएगा, सॉरी। सो 0, 1, 2, 3, 4। अभी मैं डाउट लूंगा नंबर ऑफ रेडियल नोड कैसे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा है 1s, सो दिस 1 इज गोइंग टू टेल यू n वैल्यू। आई हैव रिटन 3d, दिस 3 इज गोइंग टू टेल यू n वैल्यू, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो गई, किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये आप निकाल सकते हो, है ना, यहाँ गिवन रही है। तो नम फाइंडिंग नंबर ऑफ रेडियल नोड, सो वी कैन से n minus l minus 1, right, this is the formula। so let's say example for 3d, है ना, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना, l की वैल्यू कितनी हो गई 2, hence radial node is, देखो ये ऑलरेडी मुझे पता है ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, एंड आई नो कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाओगे बीच बीच में, बट ये सबसे छोटा तरीका है समझने का, सारे नोड बताने का। ये इक्वेशन से भी आसान तरीका है ना, बस केवल फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये जो ग्राफ वगैरह है ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये सिंपल ये यही फॉर्मूला लगने वाले n minus l minus 1। तो मैंने बताया कि जब भी कोई ऑर्बिटल लिखा होगा तो आप n की वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, और SPDF की वैल्यू मैंने आपको बता दी, l की वैल्यू, सो यू कैन राइट 3 minus 2 minus 1 equals to 0, so hence no radial node, hence no radial node, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से फॉर 3D, है ना, L की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज 2 रेडियल नोड, रेडियल एंगुलर नोड मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी 2 angular node। So let's say we will write one more example, let's say we will write 3p, we are going to write 3p, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, l की वैल्यू कितनी है 1, so what is going to be radial node, number of radial node, थ्री minus 1 minus 1 that is equals to 1, तो कितने आ गए आपको रेडियल नोड 1 आ गए, ठीक है। So how did we get the value of L? तो फिर वही हुआ कि एड्रेस डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमें मान लो किसी कोई एलिमेंट है जैसे मरकरी, मरकरी में 80 इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमें 80 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे, तो वी आर गोइंग टू लेट्स से राइट सम वैल्यूज टू दैट। हम कहेंगे भाई पहले तो पता होना चाहिए, हाउस नंबर पता होना चाहिए, सोसाइटी नंबर पता होना चाहिए, राइट, एरिया नंबर पता होना चाहिए, काइंड ऑफ लाइक दिस।
So that's how we have, let's say, given the values कि भाई L की वैल्यू अगर हम 0 लिखेंगे तो मतलब s ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 1 लिखेंगे इसका मतलब p ऑर्बिटल है. So we have given the values to represent कि कौन सा वाला कौन सा ऑर्बिटल है. Are you getting my point, Ishan? ठीक है, तो ये मैंने अभी नोट करके इसलिए दिखा दिया ताकि थोड़ा एक आइडिया लग जाए, आसान लग जाए. हाँ जैद बोलो बेटा क्या हुआ. सर आपने यहाँ पर फॉर 3D लिखे हो तो उसके लिए आपने n इक्वल्स टू 3 है, तो अगर आप फॉर 1s लिखते हैं तो n इक्वल्स टू 1 होता है. 1 हो जाता है, करेक्ट. ओके ठीक है. सो Rmax इज गोइंग टू बी ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यूज या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो पीक पहले आएगा S में तो, और यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द लेट्स से ग्राफ, जब उनके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनेंगे तो उनसे भी आपको यह आइडिया लग जाएगा कि वो Rmax क्या है. ये क्या है, अगर आप डिफरेंशिएट करके भी देखोगे ना, कैलकुलेट करके देख लेना ऋषिका, इसको स्क्वायर करना, डिफरेंशिएट मारना, देन यू एक्सपेरिमेंटली विल बी एबल टू गेट कि कौन सी यहाँ Rmax वैल्यू आ रही है और कौन सी 2s के लिए आ रही है. कैन यू डू दैट? ठीक है, तो उससे एश्योर भी हो जाएगा कि आपको मतलब क्या है. अभी मैंने वैल्यूज दे रखी हैं आपको, तो और इसको याद करने का तरीका ये सिंपल है, मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटली आपको पता चलेगा, हर बार तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये बता दिया कि फॉर सेम वैल्यू, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3D 3P 3S, तो किसमें Rmax पहले आ जाएगा? 3D में. फिर किसमें आएगा? 3P में, फिर 3S में. तो 3S का जो Rmax होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा. It will remain for all, है ना, पहले आएगा let's say for, यहाँ पे लिखना चाहो तो है ना, for let's say similarly for, you can write for let's say n equals to 3, 3D का Rmax is going to be small, like first will come first Rmax 3P and then Rmax 3S and so on, मतलब ठीक है, लिख सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है उन्होंने, ठीक है, आपकी बुकलेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, 80 समथिंग है, 83 84. ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखा हुआ था. Only Rmax is going to be, let's say, हाँ एक गुड क्वेश्चन, मैं अभी एक और पॉइंट क्लैरिफाई कर देता हूँ. हम केवल ये कह रहे हैं Rmax जो है वो 3D का ज्यादा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऋषिका? नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पास है. उसके लिए अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे, मतलब सारी R की वैल्यूज लोगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है और उसका एवरेज निकालोगे, तो R एवरेज जो है वो 3s का पास आएगा इन कंपैरिजन टू let's say 3p and 3d, and that's why we say ki s orbital, that's why we say that s orbital is closer to the nucleus. So are you following what I'm saying? कि वहां पे R एवरेज लेते हैं. ऑन एन एवरेज अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगा, ऑन एन एवरेज, then we are going to say कि s orbital में पास होगा. बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, Rmax is telling you the particular let's say antinode position of antinode जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. ऋषिका is saying कि सर Rmax कैसे ज्यादा हुआ, since we are saying कि s orbital is closer to nucleus, तो Rmax 3D का कैसे ज्यादा हुआ 3s के कंपैरिजन में. she is saying that. so I am saying कि एक तो तरीका ये है कि आप एक्सपेरिमेंट लिए जो फंक्शन दे रखे हैं इनको डिफरेंशिएट मारो, है ना, 2s 2p के लिए डिफरेंशिएट आप आराम से कर लोगे, 4 पाई r स्क्वायर का फंक्शन बना के, है ना, और आप प्रैक्टिकली चेक कर लो.
ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो आप फिर बोल दोगे, या दूसरा तरीका ये समझने का है कि इसमें तो एक ही पीक आ रहा है, राइट, उसमें 2 पीक आ रहे हैं, दूसरा पीक दैट्स व्हाई दिस गोइंग टू बी लेट्स से फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने 2s 2p को याद करने के लिए बता दिया, और यू कैन एक्सपेरिमेंटली चेक, बट इसका मतलब ये नहीं कि आरमैक्स इज जस्ट टेलिंग यू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी। अगर हम न्यूक्लियस में बोलते हैं कि s ऑर्बिटल क्लोजर टू न्यूक्लियस है, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो अगर आर एवरेज लेंगे, आर एवरेज मतलब इलेक्ट्रॉन की हर जगह पोजीशन देखेंगे कहाँ कहाँ पे हो सकती है, और उसका पूरा एवरेज लेंगे, तो 3s में पहले आ जाएगा, 3s आर एवरेज की वैल्यू 3s के लिए फर्स्ट आ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि s ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऋषिका समझ में आ गया, अभिलाष समझ में आ गया? हाउ डिड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साई आर? साई आर की वैल्यू ये श्रोडिंगर इक्वेशन को यार अगेन बहुत एडवांस मैथमेटिक्स से सॉल्व करके उन्होंने ये बताई है, तो हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं। एंड ऑनेस्टली इतना ही मैथमेटिक्स तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब जस्ट आई वुड से कि यार ये बस ले लो, हर जगह में ना आप परेशान हो जाओगे, वरना नहीं तो इतनी मैथमेटिक्स अगर मान लो मैं सीख के सिखाने भी लग जाऊंगा ना, तो भी आप परेशान हो जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। हेलो सर। सर जब आप 2p ऑर्बिटल के लिए सॉल्व कर रहे थे ग्राफ, तभी आपने साई और थीटा फाई की वैल्यू जो ली थी 1/2√6 और गिवन होंगी, मैंने बोला था ये बात कि वो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में ऑल द टाइम। ओके, नहीं मुझे लगा सर आपने कैलकुलेट करके लिखा था, तो इसलिए नहीं, ये आपको बिल्कुल आपको मिलेंगी, क्वेश्चन में दे रखी होंगी, बस आपको उसमें जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी थी कि आपको वहाँ पे साई आर की वैल्यू 0 डाल के देखनी है कि कहाँ पे किस आर की वैल्यू के लिए साई आर की वैल्यू 0 हो सकती है, एंड दैट्स इट। तो उससे आपको नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन पता चल जाएगी, वो मैंने आपको बताया हुआ है। नोड के लिए साई आर की वैल्यू 0 डालो, और एंटी नोड के लिए उसको डिफरेंशिएट मतलब 4πr² साई स्क्वायर आर को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसकी समरी जो है ना, वो ये 10 मिनट में मैंने लास्ट में लिखी है, बस वही इंपॉर्टेंट है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई रेडियल नोड, कैन यू विजुअलाइज लाइक दैट, ग्राफ वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा इस पे और टाइम देंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स और लेट्स से क्वांटम नंबर। ठीक है, कितने लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई? लेट्स से सो से यस और नो, कितने लोगों को आ गई? जस्ट टेक ए अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो समझ में आया है या फिर ऊपर से चला गया। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आई एम जस्ट सेइंग कि ये पूरा का पूरा आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ रखा है, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। बट आपको याद क्या रखना है, आपको ग्राफ का बिहेवियर देखना है कि भाई कहाँ पे आर पे कट कर रहा है। लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस कि ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक यू कैन रिलेट बेटर। तो अभी जब थोड़ा और हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा और, तो देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो एक तो यही क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3s 3p 3d, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो ये 4πr², ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क कि बताओ ना, which of the following is the correct representation of plot of radial probability 4πr² ये in y-axis versus distance in the nucleus x-axis for one electron for 4d atomic orbital। तो बात हो रही है 4d की, किसकी बात हो रही है? 4d की। तो 4d के लिए आप बता सकते हो n-l-1 कितने रेडियल नोड होंगे? सो 4 - 2 - 1 दैट इज 1। मतलब अगर आपको बस देखना है ये 1 कहाँ पे है ना, कितनी 1 कौन से वाले में है,
ये तो खैर गलत ही हो गया है ना, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एंड 1 कौन सा हो गया आंसर बताओ, कितना इजी है, दैट्स इट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है बट एप्लीकेशन इजी है इसका, है ना। जनरली उल्टा होता है, कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, एप्लीकेशन डिफिकल्ट होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इफ नोड्स एट इनफाइनाइट इन्फिनिटी आर नॉट नेग्लेक्टेड, ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटी वाले को काउंट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो जो n माइनस l माइनस 1 से जो वैल्यू आएगी उसमें +1 कर देंगे। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड, टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड बोल रहे हैं, नॉट द अलोन, लेट्स से। तो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर रेडियल एंड एंगुलर नोड क्या होते हैं, n माइनस 1, उसमें ये कह रहे हैं 1 और जोड़ दो ना, इफ द नोड्स एट इन्फिनिटी आर नॉट नेग्लेक्टेड। तो बताओ ये वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर हो गई। तो कितना आ जाएगा, 5f के लिए 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी थोड़ा और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेट्स से। ठीक है, फिर ये देखो ऐसे दे रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन दे रखी है फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक दिस। ठीक है, तो ये मतलब ये आपके 3 ऑर्डर में हो गई, राइट। ठीक है, and where a naught z are constant in which can be answered and sigma is given as 2zr by a naught, minima and maximum possible of radial nodes from the nucleus r। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा इसका, आप क्या करो, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब ये r की वैल्यू पूछ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हैं। तो एक तो सिग्मा की वैल्यू 1 आ गई, इसके क्वाड्रेटिक नोड मतलब रूट्स निकालो, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो इससे आप निकालोगे सिग्मा की वैल्यू, फिर उससे आर की वैल्यू निकालोगे, तो आपको 2 रेडियल नोड मिल जाएंगे, जो भी मिलेंगे, है ना। इसको जस्ट सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, इसमें बोला है इन्होंने मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको सॉल्व कर लो, इस केवल इस क्वाड्रेटिक को, है ना, इस फॉर्मूले से। देन यू कैन कैलकुलेट, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ आएगा, ये देखने से ही लग रहा है, या तो ये हो सकता है ना, ये तो होंगे नहीं, तो इन दोनों में आप चेक करोगे आ जाएगा वैल्यू, आसान है। और देखो कहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, राइट। द वे फंक्शन इज द ऑर्बिटल इज शोन, द नंबर ऑफ नोडल सरफेस ऑन दिस ऑफ दिस ऑर्बिटल इज, तो इन्होंने कुछ ग्राफ दे रखा है, कितने कितने नोडल सरफेस होंगी, 1 आंसर। सो ऐसे आप निकाल सकते हो यहाँ, है ना, ये देखो ऐसे दे रखा है इन्होंने, राइट, ये ग्राफ दे रखे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, अब आप काउंट कर लो, 3 कहाँ पे होंगे, 4s में मिलेंगे, n माइनस l माइनस 1, सो 4 माइनस 0 माइनस 1 3, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4s। और ये भी देखना है कि ये देखो 0 पे 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 2 3, ये किसका ग्राफ है, साई स्क्वायर, तो ये भी 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आप समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, आसान है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा और बताएंगे तब थोड़ा और आपको कमांड और बन जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है लेकिन एप्लीकेशन बहुत इजी है। सो नेक्स्ट, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन पल्लव, आई डोंट नो, मतलब मैंने पेपर नहीं बनाया, सो आई जस्ट टेक। यश, आपको अगर नहीं आया तो आप पूछो पहले मुझसे, है ना, आई विल बी अवेलेबल इन टुडेज लेट्स से इवनिंग, टुडे इवनिंग फ्रॉम 6 to 8 आई विल बी अवेलेबल, यू कैन कम एंड यू कैन आस्क इंडिविजुअली 1-on-1। ठीक है, just you have to message whoever is coming, just have to message, okay। So Tejas, I think you can start। ठीक है, और we'll see कि एक आध दो क्वेश्चन है, एक आध दो कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो भी आपने नहीं पढ़े हैं थोड़ा अभी, राइट। सो we'll see, मतलब आप बट आप ट्राई कर सकते हो, यस। चलो ओके, बाय, टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉयिंग द कॉन्सेप्ट।
Okay, bye.